have built up our business 5 times bigger just because of social media and without spending too much money onto it. That is the power of social media. And आपको जो है अपना मैसेज देना है, because वो जो मैसेज आपका दिल से निकल के आपके किसी के दिमाग और दिल में जाता है ना, वो आपकी ब्रांडिंग क्रिएट करता है. If you have any kind of experience with any of your clients, तो आप वहीं से इंस्पायर होकर वीडियो निकाल देते हो. आई गेस अगर कंसिस्टेंसी है और आपकी स्पॉन्टेनिटी आ रही है, आपका वो परफेक्शन, आपकी क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाती है. Welcome to the Social Media Power Up session. Let me give you an introduction to our keynote speaker, Mr. Raman Dua, the CEO of SafeMax. Mr. Dua's journey is nothing short of inspiring. A young individual with $1 billion dreams, a strong desire to make positive impact on the society. He embarked on a mission to fulfill just 50 families a year. He was in a vision to make sure he can get house for the 50 families in 1 year. But the vision just grew to 17,000 families to date. Under his leadership, SafeMax has flourished and has a remarkable team of 1250 plus of real estate agents and 85 plus of franchises in Canada and 20 franchises in India. At the same point of time, we are globally expanding towards Australia and US, and we would be having some of our franchises soon in States. Mr. Dua has done a generous donation of $2.5 million towards the Trillium Health Partner and $1 million to the city by getting the naming rights for a city soccer center now called as SafeMax Sports Center. Alongside Mr. Dua, we have Harjeet from Revo Realty. Despite being in Dubai real estate industry in a short time, Mr. Singh has showcased an exceptional process in attracting global investors through effective utilization of social media. Recognizing the immense potential of digital platform to accelerate business and personal branding, he has successfully harnessed the power of social media in his own career. So I'm going to extend my warm welcome to Harjeet, and together Mr. Dua and Mr. Singh, I'll engage in a captivative conversation exploring the best practice. So welcome Mr. Raman Dua and Harjeet for the day. थैंक यू सो मच जसप्रीत. और इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया है और इतने पढ़े लिखों के तरीके से, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. एनी विच वेज, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया वैसे मेरे बारे में, तो इतना हो नहीं अभी बना. बट आई एम सरप्राइज टू नो रमन, लाइक यू हैव डन सच अ ग्रेट थिंग. पता नहीं इतना कुछ आपने ऑलरेडी अचीव कर रखा है. अब बहुत कुछ आपने और भी करना, आपका विजन वैसे काफी ऊपर है. बट आई एम रियली ब्लेस्ड, लाइक आई एम हियर विद यू गाइस. Thank you so much for inviting me. Thank you, Jaspreet. Thank you, Harjeet, and thank you, everybody. I think Jaspreet has been more than reasonable, and he has been more than generous, I should say, when he was talking about giving my introduction. And Harjeet, when I talk about being reasonable, I think he should have spoke more about you, because I have watched some of your videos and I was highly impressed. I have become your fan, so. I think your energy, involvement in the work, and the way you come up with the new ideas, I think that is what is needed. Because जब आप अपने काम को enjoy करने लग जाते हैं, जब आप उसको मजा करने लग जाते हो, most of the time I heard people saying you make your passion your profession, but there are few people who make their profession their passion. Absolutely. And that is what I feel. And keep up the good work. I am inspired, highly motivated, and become a big fan of yours. Thank you so much. As the name says, social media power up session. So it's mainly about how you guys can accelerate your business by learning from the best in industry, right? How you can accelerate your business using social media. So the first question is, how did you initially leverage social media to promote your real estate business? I'm going to ask Mr. Dua, when you thought of starting your social media for your business, I believe so that in Canada, we used to use traditional ways, right, a lot years ago, but a switch, like we usually say, there in every decade there is a switch. So how you turned that switch, or how you made sure that this is the right move? Yeah, Jaspreet, I think when I started my career, initial days, I was a firm believer that you need to be on the grounds to get success. So I did a lot of door knocking, flyer distribution, cold calling. And door knocking and flyer distribution was my favorite activities. And then I was focusing a lot on the open house activities as well. And then we were using some traditional medias like, the local newspapers, and, distributing 200,000 flyers every month. So that was pretty big numbers.
But I think COVID has been, I call it as a blessing for a lot many people. I know it was unfortunate that a lot of the loved ones, they lost their lives as well. But COVID has given a direction to a lot of new things. And especially like, during 2020, at that time, there was a lot of free time, I should say, or the time which we were spending on the traditional ways. And at that time, I started like, putting up some emphasis. I was doing social media from 2019 or 2020. But I think the credit goes to one of the YouTuber. He actually called me once and he said, Raman, I want to interview you. I have seen some good activity at your end. And that really gave me a good boost up. Uh, and then I started building up on the social media. And let me tell you something very interesting. 2020 until today, which is almost like less than 3 years, we have built up our business 5 times bigger just because of social media and without spending too much money onto it. So that is the power of social media. And when I say like, building up a company which is doing close to $3 billion transactions, and if we have done 5 times bigger, you can understand how powerful the social media can be, especially in today's world. And that is backed up by the statistics where we can see like, almost like 30-40% population actually use social media almost 2.5 hours a day. So how can we ignore this powerful medium? Yeah, right. Harjeet, what's your take onto it? When it's come to the social media, it's a very powerful tool. Or to be very honest, till now we haven't explored it yet. इतना ज़्यादा अभी देखा भी नहीं है हमने. To be very honest, it's just a 1-2% हमने explore करा. It has an immense level of potential. And right, आपने एक सही बात बोली, बहुत अच्छी लगा मुझे रमन. आपने कहा था कि COVID has changed everything, lot of things when it's come to social media. मैंने कभी नहीं सोचा था कि social media can be make it that much of impact. Yes, it was a very good tool. Plus मैंने COVID के peak में आया था यहाँ पर. और जैसे रमन जी बताते हैं कि COVID में जितना इंसान ने सीखा ना, it's like 3 times. जितने कम टाइम में वो चीज सीखते हो ना, जो चीज आपको 1 महीने आपको 1 साल लगेगी, 3 साल लगेगी, चलो जो आपको सीखने में नॉर्मल टाइम में, कोविड आपको वो कुछ महीनों में सिखाया था. ऐसा टाइम था वो. अर्जित, जो इतना कंटेंट आप बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ जो कि बंदा एक पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सके, उसके बारे में क्या कहना है आपने? देखो पर्सनल लाइफ में पता है कि ये मेरी लाइफ में ऑलरेडी चल रही होती है. व्हेन इट्स कम टू आइडियाज ना, इट्स नॉट समथिंग कि यार इट्स एक्चुअली अभी यार कहीं पर लिख रहे हैं हम, वी नोटिंग इट डाउन और समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद एनी ऑफ द ऑन ऑफ योर क्लाइंट्स, तो आप वहीं से इंस्पायर होकर वीडियो निकाल देते हो. मैं बिलीव करता हूँ इस चीज को लेकर, स्पॉन्टिनिटी. अगर आप स्पॉन्टेनियस हो ना किसी भी चीज को लेकर, दैट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू एक्चुअली डूइंग समथिंग विद पैशन एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो अगर आप उस चीज को कॉन्शियसली देखते हो, आप ऐसे मूवमेंट निकाल लोगे उसमें से, तो कंटेंट तो बन ही जाएगा. लोग कहते हैं हमारे पास इतने अच्छे आइडियाज नहीं आते, आप बहुत अच्छे आइडियाज निकालते हो. मैंने तो मुझसे भी बहुत बड़े-बड़े देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना एनवायरनमेंट देखोगे ना आसपास, कंटेंट ऑलरेडी भर रखा है. तो ऐसा आप एक दिन में 10-10 वीडियोस भी बना सकते हो, 10-10 कंटेंट बना सकते हो, और आपको लगता है कि बहुत एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर आप वो नेचुरली निकालोगे ना अंदर से, उतना ज़्यादा आपका वो, एक तो वो स्पॉन्टेनियस भी होगा, प्लस आपका बहुत कम एफर्ट लगेगा. जितना स्क्रिप्टेड रखोगे चीज को उतना मुश्किल, और उतना ग्रो करना मुश्किल अपने आप को. सो देयर इज नो परफेक्ट कोई ऐसा कंटेंट टीम नहीं, बट यस, सो वी मेक श्योर कि कोई अगर मेरी वीडियो देखे तो एक स्माइल जरूर आए उसके चेहरे पे, और थोड़ा अगर लोग लिखते हैं कि यार अच्छा लगा आपकी वीडियो देख के, दिन की थकान निकल गई, स्ट्रेस निकल गया, that's actually real blessing for me. That's great. Raman ji, I want you to please share something about Rise with Raman. जब मुझे इन्होंने बोला थकान उतर गई चेहरे की, तो मुझे एक बात याद है, Rise with Raman live sessions. Yeah, so Arjit, I think you nailed it. मैं भी ना बहुत बार क्या करता हूँ कि जो एक नेचुरल कंटेंट होता है ना, जो आपका मतलब whatever is coming from inside. तो ये राइज विद रमन की भी ऐसी स्टोरी है. इट्स एक्चुअली आई एम एन अर्ली राइजर. आई गेट अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग. तो जब ये नाम रखने लगे, then I started like putting up some social media. So I used to just pick up the camera and start doing live session on Facebook. तो वो धीरे धीरे ना वो लाइव सेशन लोगों के साथ कनेक्ट करता गया, क्योंकि उसके अंदर ना कोई बनावटीपन नहीं होता है. जस्ट गोइंग लाइक एक्सटेम्पोर. किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर देते हो उसके साथ. whatever you have learned, just like keep sharing and keep guiding other people. तो वो धीरे धीरे करते वो राइज विद रमन का ऐसा एक ट्रेंड बन गया कि that has become a brand itself.
तो वो सेव मैक्स का तो ब्रांड हमने बिल्टअप किया ही किया, साथ में उसके साथ में एक राइज विद रमन का ब्रांड बिल्टअप हो गया। और जैसे कि आपने बोला कि यार बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपको ये मैसेज भेजता है कि जी मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया आपकी वीडियो देख के, या मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई, या हमें लाइफ में पॉजिटिविटी मिल गई। तो ये जो पॉजिटिविटी वाला फैक्टर है ना, ये तभी आ सकता है जब आप अंदर से प्योरिटी के साथ काम कर रहे हो। जी, जब आपके अंदर कुछ ना कुछ कोई भी चीज मिक्सअप हो गई ना किसी भी चीज के अंदर, कि आप अंदर से कुछ और बाहर कुछ और हो, तो वो बात ही नहीं आ सकती है। और यू हैव सेड इट राइटली कि हमारे सराउंडिंग में इतना सारा कंटेंट है कि हम छोटी सी एक चीज अगर कर ले, अपने आप को कॉन्शियस मोड के अंदर रखें, एक ऑब्जर्वेटरी मोड के अंदर रखें, तो उससे जो आपके अंदर से जो चीज निकल के आएगी ना, वो इतनी नेचुरल होगी कि अपने आप लोगों के साथ कनेक्ट कर जाएगी। चैलेंज क्या आता है कि लोग ना सोशल मीडिया पे सामान बेचना शुरू कर देते हैं, सेल करनी शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया इज नॉट टू सेल गाइस, इट इज टू कनेक्ट विद पीपल। और आपको जो है अपना मैसेज देना है वन वे और द अदर, बिकॉज वो जो मैसेज आपका दिल से निकल के आपके किसी के दिमाग और दिल में जाता है ना, वो आपकी ब्रांडिंग क्रिएट करता है। जबकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना उस पर बेचना शुरू कर देते हैं। भाई बेचने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी योर नेचुरल सेल्फ। So whenever it comes to building up the content, Harjeet, I have designed a formula कि 40% जो है ना, उसके अंदर आपका पर्सनल चीज होनी चाहिए, like what you are exactly as a human being। 40% आपका जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, कि आप किसी को कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हो, कुछ एजुकेशन शेयर कर रहे हो उसके साथ। एंड 20% इट शुड बी रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, बिकॉज देखिए वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एट द एंड ऑफ द डे। सो अगर आप उसको एक आइडियल कॉम्बिनेशन में फिटअप कर लेते हो, अगेन किसी के लिए 1/3 काम कर सकता है, किसी के लिए 50-25 काम कर सकता है। इट्स ऑल एब्सोल्युटली योर ओन कॉल। सो ये जो जसप्रीत राइज विद रमन की जो चीज थी, मतलब अब मेरे लिए इतनी एक फेवरेट हो गई है कि बहुत बार मुझे लगता है मेरी ऑब्लिगेशन है यार सुबह उठ के लाइव सेशन करना। Right. We got to know from you and Mr. Raman that at the same point of time, personal touch to a video is more than important, right? What other strategy you will gonna suggest? When it comes to strategy, there is no like perfect strategy तो कुछ होती नहीं, but I have followed few things जो मैंने भी किससे सीखी हैं for sure. So one thing is there like after spontaneity वो सब तो ठीक है, लेकिन consistency is like everything। अगर आप consistent हो किसी चीज में लेकर, and that's very very important। अब लोगों का एक और प्रॉब्लम होता है कि जो फेस करते हैं वो that is perfection। I'm to be very honest, मेरे को बड़ी आदत है परफेक्ट, मतलब मुझे चीज परफेक्ट चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे एंगल ये वो पहले होता था मेरे अंदर, और आज भी कुछ चीजों को लेकर आपके अंदर वो फैक्टर होना भी चाहिए, बट अब परफेक्टनेस के नीचे इतना भी मत चले जाओ कि आपका फिर वो ना कंटेंट ही नहीं बन रहा है। अब जब बन रहा है तो फिर मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू कोई मुझे अगर फॉलो करता है, जो अभी कंसिस्टेंसी है पहले के मुकाबले बीच में ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है, ऑन ऑफ होती रहती है, फिर ध्यान दिया इस चीज को कि कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब मंत्र है, ये करना ही करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है इस चीज से कि आपको हर दिन अपलोड करना है डेफिनेटली, और फोर्स नहीं करना है। इट शुड बी नेचुरल आल्सो, दैट इज आल्सो देयर। तो अपना माइंड उस तरह से प्रेशराइज नहीं करना है कि यार कंटेंट हमेशा क्वालिटी वाला ही जाना चाहिए, हाँ, लेकिन स्पॉन्टेनियस और नेचुरल जाना चाहिए। आई गेस अगर कंसिस्टेंसी है और आपकी स्पॉन्टेनिटी आ रही है, आपका वो परफेक्शन, आपकी क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाती है यार। लोग हैं फीडबैक देने के लिए, और मतलब खराब बात तो हर कोई बोलता ही है, आप बस अच्छा देखो अपना और बनाते रहो वीडियोस। मजा होता है कंटेंट शूट करने में, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजा आना चाहिए। उसमें क्या व्यूज आ रहे हैं, क्या लाइक्स आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। कभी कभी इतनी मेहनत लगाते हैं कंटेंट के ऊपर, सबसे खराब हो ही जाती है। और कभी कभी बिल्कुल नहीं मेहनत लगाई होती कि ये तो ऐसी बन गई थी यार, वो वायरल चल गई, तो कोई पता ही नहीं। अच्छी बात है कि मैथ इस चीज का एल्गोरिदम और मैथ पता ही नहीं, पता हो तो फिर तो हर कोई क्रैक कर ले। अच्छी बात है ना, अभी तक सरप्राइज रखा हुआ है। मुझे ना इंस्टाग्राम का पता है, ना मुझे टिकटॉक का पता, ना मुझे यूट्यूब का पता, ना मुझे फेसबुक का पता। मुझे पता नहीं क्यों कैसे वायरल होती है, क्या डालना होता है क्या नहीं। हाँ, मैसेज कन्वे कराना है, वो चीज क्लियरिटी, वो शब्द पहुंच जाने चाहिए, बस वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Raman ji, what are your thoughts on negative comment? I love it. that's my simple take onto it. देखो एक चीज ध्यान में रखो लाइफ के अंदर ना, अगर आपको नेगेटिव कमेंट से, क्रिटिसिज्म से या किसी भी चीज से डर लगता है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप जिंदगी में कामयाब होने की सोचना छोड़ दो। आप ये भूल जाओ कि आपको लाइफ में कहीं ऊपर उठना है। ये जो है ना, ये उसका फ्यूल है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं हरजीत, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं बड़ा फास्ट बोलता हूं कई जगहों पे, अब मैं थोड़ा धीरे धीरे मैं उसको ठीक कर रहा हूं,
तो मैं जब प्रॉपर्टी बोलता था वो पूपर्टी सुनता था। ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि वो मैं फास्ट अपने पेस में जा रहा हूं तो वो पूपर्टी सुनता था। तो बहुत बार क्या हुआ, लोगों ने उसमें ना कमेंट बोलने शुरू कर दिए कि यार इंग्लिश बोलना तो सीख लो, यार आपको तो प्रॉपर्टी बोलना नहीं आता, आप पूपर्टी बोलते हो। तो मैंने देखा वो वाली वीडियोस ना बहुत वायरल हो रही थी। अच्छा, फिर मैंने ना, माय डॉटर शी इज इन लाइक यू, उनका बच्चों का, यहाँ वाले बच्चों का ना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उनका मस्त बढ़िया होता है। तो मैंने उसको कहा कि श्रेया मुझे ना प्रैक्टिस करवा, तो मुझे ना प्रॉपर्टी बोलना है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से यार प्रॉपर्टी बोलना सीखा, तो उसकी ऑडियंस कम हो गई। अच्छा। फिर मैंने जान की प्रॉपर्टी बोलना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना, इट इज ऑल अबाउट एंजॉयिंग व्हाट यू डू। अच्छा, मुझे नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं क्योंकि देयर वाज अ टाइम वी आर वेरी एग्रेसिव ऑन some of the new systems which we brought into the market here in Canada. तो एक टाइम था, आई वाज द मोस्ट हेटेड पर्सन इन द सिटी। मतलब पूरा शहर ही मतलब ऐसा लगता है कि आपके पीछे लगा हुआ है यार। तो पर मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज मैंने, आई डोंट नो, वो जैसे आप बात करते हो ना भाई यार वो कोई ब्लेसिंग्स है लाइफ दिया, तो आई थिंक ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है कि मेरा माइंड ना पॉजिटिविटी की ओर ही अट्रैक्ट होता है। तो आप कभी भी मेरे टिकटॉक पे या कभी भी सोशल मीडिया पे जाओगे ना, तो मैं बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स को हेड ऑन लेता हूँ और मैं उनको पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करता हूं। तो उससे क्या होता है, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं जो कि नेगेटिव कमेंट्स करते थे और बाद में मेरे साथ लंच या डिनर पे बैठे हुए हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। पर देखो वो तभी आ सकती है पॉजिटिविटी जब वो नेगेटिविटी से शुरुआत होगी। अगर सब कुछ ही अच्छा होगा, सो जब भी कोई नेगेटिव कमेंट आए तो आप उसको थैंक्स बोलें, आप उसको एक्सेप्ट करें और उससे ही सीखें कि यार इसने क्यों ऐसा बोला। अपने आप को उसके शूज में डाल के देखें और ये देखें कि यार अच्छा, अगर उसने ऐसा सोचा है तो क्यों सोचा है और मैं उसको किस तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। Absolutely. राइट। एंड जसप्रीत, अनफॉर्चुनेटली वी आर सराउंडेड बाय 95% ऑफ द नेगेटिविटी। पर देखिए हमें कहीं से तो शुरुआत करनी है उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने की। तो मैं ये सोचता हूं कि ये हमारे पास एक मीडियम है, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों का थॉट प्रोसेस पॉजिटिव करने की। तो आप किसी भी नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर नहीं करें या उसको डिलीट नहीं करें, उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी के साथ उस आदमी को वापस भेजें। राइट। और फिर देखें आपके सराउंडिंग में आपका ऑरा किस तरीके से बढ़िया खड़ा हो जाता है। और खास तौर पे सोशल मीडिया में इस चीज को फेस करना अपने आप में बहुत बड़ी ब्यूटी है। Yes, absolutely. When you start social media, तो झूठ नहीं बोलूंगा, हिट तो करता है इनिशियली जब आपके कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है। पॉजिटिव भी बहुत आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव भी आता है। नेगेटिव इज अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक पर्सपेक्टिव लिया और उस पर्सपेक्टिव ने मेरा पूरा गेम मतलब पूरा चेंज कर दिया इन चीजों को लेकर। हाउ आई टेल यू, देयर आर टू रीजंस पीपल विल पोस्ट अ नेगेटिव कमेंट। वन मेन रीजन है कि एक्चुअली में यार कुछ गलती करी हमने, इट्स अ फीडबैक, इट्स समथिंग यू हैव डन रॉन्ग। ठीक है, तो वो आप एक्सेप्ट करो। देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो आपको सुनना भी होता है उस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज जरूरी है भी। ठीक है, और जो आपकी इंटेंशन चेंज ना करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वो कुछ भी लिख रहा है आप उसको मान लो, बट ऑब्वियसली आपका इंटेंशन प्योर अगर है उस चीज को लेकर, वो कुछ अगर फीडबैक दे रहा है तो आप उसको लो फॉर एग्जाम्पल। और गाली भी देता तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ करा होगा आपने गलत यार, अभी दे दी उसने। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या कहता है, लोगों का ना ऐसा रहता है कि वो अपने लाइफ से थोड़ा तंग है। आप खुद सोचो यार जरा, इतने लोग वीडियोस देखते हैं, उसको क्या पड़ी है कि आपके क्या कर रहे हो आप एक कुछ भी कोई सर्विस दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको क्या पड़ी है कि वो कमेंट में डाले कि यार ये चीज आपने, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर, व्हाटएवर इट इज, वो भी नेगेटिव कमेंट डालता है। इसका मतलब है कि पहली बात तो देखो, हमारे पास तो टाइम नहीं है यूट्यूब की वीडियो लाइक करने का, लोग डिसलाइक भी करते हैं, ऊपर से कमेंट भी कर रहे हैं। तो अपने अपने मैं तो समझता हूँ कि अपने वैल्यूबल, इतना वैल्यूबल टाइम होता है, उसमें से टाइम निकाल कर कोई आपको कमेंट कर रहा है और वो भी नेगेटिव, तो मतलब वैसी बड़ी ब्लेसिंग है कि उस बंदे ने मेरे लिए टाइम निकाला और डाला। अगर तो वो सही है तो उसको फीडबैक की तरह ले लो। ठीक है, अगर तो वो आपको पता चले कि नहीं ये गलत बात है, ये तो नहीं बन रही है, तो फिर उस पर तरस आना चाहिए कि बेचारा कोई ना कोई प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा होगा अपनी लाइफ में लेकर, और उसको वो बाहर निकालना है, और उसको कोई और तरीका नहीं दिख रहा है सिवाय कमेंटिंग करने के। वहीं डालेगा ना वो, कहीं ना कहीं उसको जो मिलता है जहां पर वो नेगेटिविटी कर सकता है वो बाहर निकालना, बिकॉज बेचारे के अंदर किसी ने और भर रखा है वो जहर, जो बाहर निकालना पड़ेगा उसको हम हेल्प ही कर रहे हैं।
आपको नहीं होनी चाहिए। आप उस चीज़ को इवैल्यूएट करो, अगर लगता है क्रिटिसिज़्म, अगर लगता है कि वो एक फीडबैक है तो फीडबैक की तरफ, नहीं लगता है तो तरफ। दोनों कामों में गुस्सा तो आता ही नहीं, ना इंसान को कोई गुस्सा आता है, ना नाराज़गी होती है, ना कुछ नहीं, चल वो भी सही चल रहा है। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। कई लोग तो 4-4 मतलब 5-5 लाइन का पैराग्राफ लिख देते हैं। मेरे को मज़ा आया। कमेंट में तो पैराग्राफ ही माना जाता है उस चीज़ को। मैं पढ़ लेता हूँ पूरी तरीके से, फिर आगे अगर मेरे को रिप्लाई करने के, जैसे रमन जी कहते हैं, काफ़ी पॉज़िटिव तरीके से रिप्लाई कर देते हैं। अगर मुझे उसमें भी कुछ ह्यूमर नज़र आ जाता है, मैं छोड़ता उसे भी नहीं। कुछ ना कुछ कर देता हूँ। रमन जी, मुझे आपसे एक बारे पे पूछना था, समथिंग मोर अबाउट पर्सनल लाइफ।